let me tell you the plan. The academic plan is pretty much the same like the way we planned in our demo classes. Those who have attended our demo classes, which was the first classes which we have done, the academic plan remains the same. Just that since now most of you are enrolled, I will talk about the administrative plan from Facebook side. What we have planned for you, how things will go, what we will do, everything. Okay. So prior to everything, let me tell you on the demo class, or in the demo class, what I had done with you. I will recap today, and after that I will start with today's session. And today's session we will do fresh things in law with a fresh perspective. But prior to anything, let me tell you what are the administrative plannings which we need to do together in order to succeed. Okay, first, so first thing is today's date, which is 17th of June. Okay, so on 17th of June, we are starting, and will actually, be a small number. So this year, the year 2020, is a very, 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 difficult year. All of us are feeling that, right? And this year, CA exams are also postponed from May term to November term, not May term to November term, May term to August. And in August, the students who were supposed to appear in May, they can appear, but they have been given an option that they can appear in November also. ओके, सो नवंबर में जो लोग आप लोग बैठोगे, आप लोग का कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा लोग उस टर्म में बैठेगा, यही प्रेडिक्शन है. तो आप लोग को कोई उससे मतलब नहीं है. what you need to do is you need to prepare yourself well. That's it. And that is what we are going to do. We are going to ensure that you are prepared well. Okay, now before going or doing anything else, let me tell you the plan this week on behalf of Facebook for all students, video, DTH, and online life. Okay, now the first plan is our schedule has been given to you, and I'm sure that all of you have it. Every day before classes, almost half an hour before classes or 45 minutes before classes, you will be given the Zoom IDs, the online live students. Okay, and and this week, since it's the starting week, we are warming up. It is but obvious that जब कुछ चीज स्टार्ट होता है तो तब तब तो और भी एडमिशन होते रहते हैं, तो अपने अपने इस वीक को उतना ज्यादा क्लासेस नहीं करेंगे. जाके जो स्टूडेंट्स बाद में आएगा उन लोग को बैकअप देना, ज्यादा बैकअप पड़े, उन लोग का लाइफ ज्यादा मिस हो. तो दिस वीक वी हैव डिसाइडेड टू गो अ लिटिल स्लो. We have decided to go a little slow, and and we have planned that we will have one class per week for every subject. यानी कि सपोज कीजिए आज अगर लॉ हो रहा है तो लॉ नेक्स्ट वीक होगा. ऐसे भी लॉ और बीसीआर और बीसीके और इको एक एक करके ही है. ठीक है, मैथ्स एंड अकाउंट्स 3 सेशंस है, तो मैथ्स एंड अकाउंट्स पहला वीक खाली 2 ही सेशन होगा, मतलब एक सेशन होगा, एक मैथ्स एक अकाउंट्स. ये क्यों? क्योंकि हम लोग उतना फास्ट नहीं जाना चाहते हैं जिससे कि आप लोग का पहला मतलब जो बेस है, बेस उतना फास्ट जाके बेस को मतलब बेस बिल्डिंग में दिक्कत हो, पहला बात. दूसरा चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब बैच ये बढ़ेगा तब अचानक कुछ स्टूडेंट्स बीच में से आ जाएगा, तो बीच में से ये पहला 2 हफ्ता बहुत ही क्रूशियल है. कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी क्लास या कोई भी वैसा चीज स्टार्ट करने के लिए, तो पहला 2 हफ्ते में जो लोग आएंगे उन लोग का जाके मिस मिनिमम हो, इसीलिए हम लोग ये प्लानिंग किए हैं. इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग एडमिशन ले लिए हो, स्टार्ट कर दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है.
इसमें आप लोग का भलाई है कि बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा हफ्ते में हर सब्जेक्ट का। अभी फॉर द फर्स्ट 1 week एंड द सेकेंड वीक वी विल हैव 1 class per सब्जेक्ट। तो लॉ, बीसीआर, बीसीके, इको में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो तो एक सेशन ही था। लॉ एंड बीसीआर मिला के एक सब्जेक्ट है तो 2 क्लास है, एक लॉ का एक बीसीआर का। और इको एंड बीसीके मिला के 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है तो इको का एक, बीसीके का एक, तो दो क्लास उसका मिल गया वो 2 पेपर का। सर तो कौन सा पेपर में फर्क आएगा? अकाउंट्स का 3 क्लासेस था, मैथ्स का 3 क्लासेस था, तो अकाउंट्स एक ही क्लास होगा इस सप्ताह और मैथ्स एक ही क्लास होगा। आइए मैं रूटीन भी समझा दूं। आपके पास रूटीन है तो आप खोल लीजिए। रूटीन में आप देखना लिखा हुआ है कि अकाउंट्स है TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। TTS को है अकाउंट्स, TTS में खाली सैटरडे होगा। सर अकाउंट्स का फैकल्टी कौन है? मैं। So I will be teaching accounts. Today I am teaching law. I will be teaching accounts on Saturday. So this week का routine मैं थोड़ा समझा दूँ. Of course our administration will help you and once again tell you, remind you of everything. So I'm just telling you for the sake of you can copy it from so on Thursday, that is tomorrow, we do not have any class. Sir, what about BCR? BCR will start from next week. ओके बीसीआर मेरा लॉ का ही पोर्शन है तो लॉ आज होगा, बीसीआर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होता है। मैं हर जगह बीसीआर एक हफ्ता बाद में स्टार्ट करता हूँ लॉ का। ओके थर्सडे, तो थर्सडे नो क्लास। ओके फ्राइडे, सर थर्सडे का अकाउंट्स मैं बोला ना इस हफ्ते एक बार होगा तो सैटरडे अकाउंट्स लेंगे। फ्राइडे यू हैव मैथ्स, आदित्य गोइंका सर का मैथ्स क्लास फ्राइडे को है। सर आज मैथ्स क्लास नहीं है? नहीं, मैथ्स भी एक ही होगा, तो दिन में एक ही क्लास रख रहे हैं आपको स्प्रेड आउट करने के लिए, क्योंकि इस हफ्ते में हम लोग एक क्लास हर सब्जेक्ट का करेंगे। तो आज प्रेशर क्यों बढ़ा है? आज लॉ है तो परसों मैथ्स है, सैटरडे अकाउंट्स है। सैटरडे अकाउंट्स है तो शेड्यूल में जो सैटरडे अकाउंट्स वाला क्लास है होगा, फ्राइडे मैथ्स वाला क्लासेस होगा। ओनली फॉर दिस वीक आई एम जस्ट डूइंग this week classes. You can copy it and keep it with you for this week. For next week से क्लासेस बढ़ जाएगा एंड थर्ड वीक से पूरा क्लासेस जैसा होता है फुल फ्लेजेड वैसा होगा। ओके तो फ्राइडे वी हैव मैथ्स, सैटरडे वी हैव अकाउंट्स एंड संडे वी हैव इको। लॉ तो आज हो गया। अच्छा संडे वी हैव 2 क्लासेस, यस, इको आल्सो एंड बीसीके आल्सो। बीसीआर खाली मैं हर जगह एक हफ्ता बाद ही चालू करता हूँ लॉ का, तो इसलिए कल बीसीआर का क्लास नहीं। ओके so this is the plan for your this week. Okay all right so sir अब बताइए कि हम लोग क्या किए थे लॉ में। आई एम स्टार्टिंग विथ our demo class में जो हुआ था, introductory class on law. Whether or not you people have seen it, I will go through it as if you're hearing it for the first time. And अगर आप देखे हो तो आपको remind करा दूंगा. It will be a revision. Okay. So like I said, CA Foundation में 4 पेपर में सबसे क्रूशियल पेपर, गेम चेंजर इसको माना जाता है। सर क्यों? पहला बात, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इज नॉट इजी टू स्कोर। दूसरा बात, ये सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है इसका। सब्जेक्टिव टाइप मतलब कोई एमसीक्यू नहीं। सब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या होता है? कोई एमसीक्यू नहीं, पूरा फुल 100 ऐसे टाइप आंसर लिखना है 100 मार्क्स। तीसरा चीज, दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट लॉ, इसके पहले किसी का एक्सपोजर नहीं रहता है लॉ में। No one has a exposure in law prior to this. Okay, sir. So it's a new subject. It's subjective and theoretical subject. Okay, these 3. And theoretical subject में भी ये technical है। और सवाल जो है, सवाल लास्ट 2-3 टर्म में लॉ का पेपर में टफेस्ट था, तो लॉ क्या बन गया? गेम चेंजर। क्यों गेम चेंजर? जो लोग लॉ अच्छे से किया वो लोग पास कर पाया, जो लोग लॉ अच्छे से नहीं किया वो लोग, बिकॉज लॉ अगर आप कैसे भी करके 40 भी उठा लेते हो तो पास इंडिविजुअली कर जाओगे,
बट ओवरऑल सीए में एक फंडा है, चारों सब्जेक्ट में सीए कोर्स में यू हैव सब्जेक्ट्स, सीए फाउंडेशन में यू हैव सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इको, एंड मार्क्स जो है वो भी 100 है, 100 है। अच्छा सर, so 100 मार्क्स में टोटल वो कितना है, व्हाट इज द टोटल पास मार्क्स? द टोटल पास मार्क्स इज 50%। तो पास मार्क्स का क्राइटेरिया कुछ ऐसा है, मैं जो लिख रहा हूँ गौर करना, 40% है इंडिविजुअल, 50% है एग्रीगेट। तो 40% इंडिविजुअल मतलब 40 इंडिविजुअली मिलना पड़ेगा सब में, ठीक है, बट 40 को एग्रीगेट करोगे तो कितना आता है, 160। 160 से यू आर नॉट पासिंग, फॉर पासिंग यू नीड 200। तो सर इन इफेक्ट एवरेज में चारों सब्जेक्ट में कितना लाना है, 50। इसीलिए लॉ गेम चेंजर बनता है, क्योंकि इको में ना सबका लगभग, ये स्ट्रैटेजी शुरुआत वाला दिन में बना लो, इको में सबका लगभग 60 मार्क्स आ ही जाता है, 60 के ऊपर ही आता है सबका, 70-80 आसान है इको में लाना, एमसीक्यू है और इको पहले देखा हुआ है, और इको में 50 मार्क्स इको है, 50 मार्क्स एकदम आसान टॉपिक है, बीसी के पढ़ाया जाएगा। और मैथ्स बिकम्स टफ फॉर मेनी पीपल फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, बिकॉज मैथ्स अपना वीकनेस है। मैथ्स यहाँ पे बहुत बढ़िया से होगा, एमसीक्यू का ही एक्सपर्ट बैठा हुआ है, एमसीक्यू पेपर है मैथ्स एंड इको, ठीक है। बट सर मैथ्स में स्कोर करना अगर 40 के आसपास आता है तो एक सब्जेक्ट में ज्यादा, इको में ज्यादा, मैथ्स में कम, सेट ऑफ हो गया। अकाउंट्स में अगर किसी का खराब गया और कम आ गया तो कौन बचाता है, लॉ। Are you getting me? So that is why this is such a crucial game changing paper I am telling you from day one, because today is law, and I will continue telling you what I had told you on the demo class, and so that you can recall. मैं बोला था ये पेपर जो है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, इसमें बिजनेस लॉ वाला पोर्शन है 60 मार्क्स एंड बीसीआर वाला पोर्शन है 40 मार्क्स। बीसीआर का क्लास अपना थर्सडे करके है और लॉ वाला क्लास अपना वेडनेसडे करके है, और अकाउंट्स है मेरे साथ ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मॉर्निंग स्लॉट, लॉ भी मॉर्निंग स्लॉट है, खाली बीसीआर मेरा आफ्टरनून स्लॉट है, ठीक है। तो 2 स्लॉट में हर दिन क्लास है आप लोग का फेस द बुक में। ओके सर, गोइंग फॉरवर्ड कॉलेज वगैरह के टाइम में हम लोग एडजस्ट करेंगे, सब होगा, डोंट वरी, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड वी विल प्रोवाइड यू एवरी ऑप्शन। ओके नाउ सर, बिजनेस लॉ में कितना सिलेबस में क्या है, देखो मैं लिखा था पढ़ाते वक्त 5 एक्ट्स है, और बीसीआर पोर्शन में 40 मार्क्स में क्या है, 13 चैप्टर्स। मैं उस दिन डेमो क्लास में और पहला वाला क्लास में मैं बोला था कि टोटल कुल मिला के सीए कोर्स में फाउंडेशन, इंटर और फाइनल मिला के 2000 मार्क्स है, कितना, 2000 मार्क्स। और 2000 मार्क्स में अगर हम लोग बात करें, लॉ एंड ऑडिट अकेला as a subject, law and audit akela as a subject is 500 and accounts as a subject is 400, so 50% of your efforts in the entire CA degree is in accounts, law, audit. sir aap padhate ho ye? हाँ मैं पढ़ाता हूँ। so 50% of your efforts will be given to subjects like law, audit and accounts. This analysis I have done on the first day itself, so that you understand the impetus and the importance of the subject law and accounts. Okay, highest law. Okay sir, what is law, how is law made, आप बोले थे याद करना। मैं बोला था कोई भी जगह में लॉ को कैसे बनाया जाता है। मैं बोला था डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में अपने लॉ कैसे बनाते हैं, अपने लॉ बनाते हैं या लॉ बनता है थ्रू पार्लियामेंट। इट्स अ स्टैट्यूटरी प्रोसेस, इट्स अ लीगल प्रोसेस। मैं बोला था गवर्नमेंट का 3 पंख है, विंग्स है। व्हाट आर द 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट? नंबर 1 द लेजिस्लेटिव विंग, नंबर 2 द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, and number 3 the which wing, judicial wing.
अच्छा सर, ये जो 3 विंग्स है, ये 3 विंग्स का काम क्या है? लेजिस्लेटिव विंग का काम है लेजिस्लेशन बनाना, यानी कि कानून बनाना, देश का कानून, देश का पूरा सेंट्रल कानून या यूनियन एक्ट कैसे बनता है, यूनियन गवर्नमेंट बनाता है। यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव विंग को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। सर वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं स्टेट का कानून, हाँ बिल्कुल, स्टेट लेजिस्लेशन स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगा। सर अपने स्टेट में कौन बनाएगा? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सर चुनाव जो होता है हम लोग चुनते हैं, हाँ हम लोग चुनेंगे, आप मैं हम लोग सब मिलके चुनेंगे गवर्नमेंट कौन होगा सेंट्रल में, स्टेट में, इलेक्शंस में। वही तो प्रक्रिया है डेमोक्रेसी में। और जो स्टेट में हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपना, स्टेट में जो स्टेट का लेजिस्लेटिव बॉडी में जो अपने को रिप्रेजेंट करते हैं उनका नाम है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट में अपने को रिप्रेजेंट करेगा अपने एरिया से, उनका नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव विंग में कानून प्रपोज करता है, और वो कानून मेजॉरिटी ने अगर पास कर दिया, 2 हाउसेज है पार्लियामेंट में, लोअर हाउस अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, दोनों हाउस अगर पार्लियामेंट का पास कर दिया कोई प्रोपोज्ड एक्ट या प्रोपोज्ड बिल, तो वो पास होने के बाद राष्ट्रपति उस पर अगर साइन कर दे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर दस्तखत दे दे, तो फिर वो बन जाएगा एक्ट। ऐसे ही बिल से एक्ट बनता है, और यही देश में कानून बनाने का तरीका है। अच्छा सर, ये कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो लेजिस्लेटिव बॉडी है यानी कि पार्लियामेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट अगर स्टेट लॉ बनाएगा तो सेम प्रक्रिया होगा, खाली पार्लियामेंट के बदले हो जाएगा कहाँ? लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा। और सिग्नेचर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं, गवर्नर ऑफ द स्टेट को देना पड़ेगा। क्लियर है सर? तो लेजिस्लेटिव विंग, आप बोले थे पहला क्लास में, लेजिस्लेटिव विंग इज द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मेक्स लॉ, यस, हाउ लॉ इज मेड समझा रहा हूं। फिर लॉ का पालन करने के लिए एक्ट बना लिया पार्लियामेंट, लॉ का पालन करने के लिए, देखने के लिए लॉ माना जा रहा है कि नहीं और ठीक से एडमिनिस्टर हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए अपने पास क्या है? मिनिस्ट्रीज। ये जितना भी मंत्रालय है, जितना भी मिनिस्ट्री है, स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में, वो सारा मिनिस्ट्री 50-60 होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर बोलते जाओगे आप, नहीं एग्जाम्पल दिया, 100 नाम है, 50, मतलब 50-60 मिनिस्ट्री है, और स्टेट में और उसमें सेम है। ओके सर, तो सर बताइए कि ये मिनिस्ट्री क्या करता है? जितना भी कानून बना, उस कानून में से कुछ कुछ कानून मिनिस्ट्री का अपना केयर के लिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लुक्स आफ्टर अ कानून जो अपना इंटरेस्ट है सीए लोग का, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 जो कानून है, ये कानून एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन देखता है? कौन सा मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वी कॉल देम एमसीए। ओके सर, फिर जुडिशियरी विंग क्या था? जुडिशियरी विंग वाज द विंग व्हिच विल डिसाइड वेदर द लॉ इज जस्ट और अनजस्ट। लॉ लेके अगर आप कंफ्यूज हो गए, आपको इंटरप्रिटेशन लेके मुश्किल हो रहा है, यू कैन नॉट इंटरप्रेट वेदर दिस इज करेक्ट और दिस इज रॉन्ग, देन you have a place to raise a query, you have a place to complain, you have a place to ask whether this is right or wrong. Who will interpret? Of course पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री में जाओगे, वो लोग तो गवर्नमेंट ही हो गया, वो लोग बोलेगा हम लोग जो बनाए वो सही बनाए, आप गलत हो। तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट अनबायस्ड फोरम होना चाहिए जहां पे ये कानून जो पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री मिलके बना रहे हैं और देखभाल कर रहे हैं, ये कानून अगर अनजस्ट लगे, अगर गलत लगे, अगर अनफेयर लगे, तो आप कहां पे आपको सोल्यूशन मिलेगा? जुडिशियल सिस्टम। द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द विंग विल डिसाइड वेदर कानून इज करेक्ट और नॉट, और इंटरप्रेट वो लोग करेंगे। The sole duty of interpretation and the ultimate duty of interpretation lies with them.
एंड क्या स्ट्रक्चर है लीगल कोर्ट्स का इंडिया में? इंडिया में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर है, बॉटम से अगर अप में जाओगे, बॉटम अप करोगे तो शुरू से नीचे से चालू करेंगे तो नीचे सबसे बैठा हुआ है कौन? डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स एंड उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट्स। क्लियर है? तो ये है फंडा ऑफ जुडिशियल। ओके, नाउ ये बोलने के बाद अपने स्ट्रेट अवे शुरू करेंगे विथ द न्यू थिंग। क्या सर? देखो मैं ये सब पहला ही बोल दिया था और लिखा भी दिया था। देखो क्या लिखा था, फर्स्ट बिल इज टेबल्ड and introduced in Lok Sabha. After it is passed in Lok Sabha, it goes to the upper house, which is Rajya Sabha, and after it is passed in Rajya Sabha, then it goes to President of India. President of India gives assent to the bill passed by both the houses, and now this assented bill becomes act. ठीक है? यूनियन एक्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट is passed by both the houses of the parliament and assent given by POI. State act bill passed by both the houses of legislative assembly and assent given by governor of the state. फिर मैं बोला सिलेबस याद करो, मैं बोला था लॉ का जो 60 मार्क्स है इस पेपर में, लॉ इज 60, बीसीआर इज 40, तो 60 मार्क्स का लॉ के लिए ये है तुम्हारा सिलेबस। और ये सिलेबस में सबसे पहला एक्ट जो है उसी से अपने स्टार्ट करेंगे। उस एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कैन यू ऑल सी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Okay, so Indian Contract Act ka section 1 to 75 is in syllabus. This is what we will start with today. If you recall, I had just started this also, whereby I had said Indian Contract Act 1872 सबसे पुराना एक्ट में से एक एक्ट है। Of course ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और ब्रिटिशर्स ने किस लिए बनाया था? अपने लिए या इंडियंस के लिए? अपने खुद के लिए। क्यों? क्योंकि उन लोग का कानून बनाने से फायदा है ना देश को चलाने में। इतना बड़ा देश है, रूल करेगा तो कानून बना लिया, जो भी कानून के खिलाफ जाएगा उसको सजा मिलेगा, इसीलिए तो कानून बनता था। ओके सर, तो इंग्लिश पीपल हैड फॉर्मुलेटेड और promulgated or made a law which was known as English common law. English people were the colonial power in more than 10-12 big countries, and वही सारा कंट्रीज में चलाने के लिए कानून का इस्तेमाल किया, और कानून का इस्तेमाल करके एक इंग्लिश कॉमन लॉ बनाया, और वही इंग्लिश कॉमन लॉ पे आधारित है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बहुत सारे दूसरे एक्ट्स डिफरेंट देशों में, इनफैक्ट जहां जहां ब्रिटिशर्स वेर कोलोनियल पावर। ओके सर, आप फिर लास्ट चीज जो पढ़ाए थे वो था स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्ट। एक एक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्ट दिखने में कैसा होता है, एक्ट के अंदर क्या मिलता है। मैं बोला था एक्ट में बहुत सारा चैप्टर्स रहता है, मेनी चैप्टर्स। ओके, एंड देन आई हैड सेड मेनी चैप्टर्स के बाद आई हैड सेड दैट मेनी चैप्टर्स के अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर बहुत सारा सेक्शन भी होता है, मेनी सेक्शंस, एंड हर एक सेक्शंस के नीचे अंदर बहुत सारा सब सेक्शंस या क्लॉजेस होता है, एंड लास्टली एक्ट का लास्ट में एकदम क्या होता है? शेड्यूल्स। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दिया, कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है एंड 7 शेड्यूल्स है। ओके, so this is how an act is structured. Now without any further ado, I will start. I have just revised demo class में हम लोग क्या किए थे। Today is the first formal class में मैं इस हफ्ते का रूटीन पहले दे दिया, फिर मैं रिवाइज कराया, उसके पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मोटिवेशनल टॉक किया। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट फॉर्मल क्लास ऑफ लॉ। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाउ सर्टेन टिप्स, आप लोग जब घर में क्लास कर रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव ऑनलाइन में हो, डजेंट मैटर, आप कॉपी लेके बैठोगे, सब्जेक्ट का एक कॉपी बनाओगे। जैसे अकाउंट्स करोगे तो अकाउंट्स, लॉ जब करोगे लॉ, मैथ्स जब करोगे मैथ्स, इको जब करोगे इको, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बना लेना, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ाई करते थे। और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच में पढ़ाई होगा घर में भी, और इससे क्या होगा, आपका सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और फिंगर टिप्स में मिल जाएगा। सीए में बहुत स्ट्रेस होता है अगर कॉपी ठीक से मेंटेन नहीं होता है। पहला दिन बता दे रहा हूँ,
ओके, तो मेरा बुक जो है, बुक हम लोग सीए इंस्टीट्यूट का ही चारों सब्जेक्ट का मटेरियल यूज करेंगे। मटेरियल कहाँ पे मिलेगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे मिलेगा वो भी दिखा दे रहा हूँ, अभी मैं जब मटेरियल खोलूंगा देख लेंगे। और 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 उसके साथ साथ मेरा कॉपी मतलब मैं जो भी बोर्ड वर्क करा रहा हूँ, बोर्ड तो नहीं है सर, एक्सेल शीट में करा रहा हूँ। हाँ, एक्सेल शीट को ही बोर्ड मान के मैं पढ़ाता हूँ। तो एक्सेल शीट में जो भी मैं लिखने वाला हूँ वो सारा आपका कॉपी में आप नोट करने वाले हो। आपका कॉपी भी बहुत पावरफुल बन जाएगा, बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। एंड आई टेल यू, यू हैव टू मेंटेन इट। Okay, every time I say something to highlight something, you highlight in the hard copy of your book. If you do not have hard copy of your book, download an Adobe फाइल, यानी कि पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके एडोब रीडर से खोलने से एडोब रीडर में हाईलाइट ऑप्शन रहता है, तो यू कैन हाईलाइट द बुक as if you are highlighting the hard copy of the book. So all these technical things you can improvise, and I will give you idea from time to time, and this is how you can maintain your studies at home. Okay. ऑल राइट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू कर रहे हो सर? हाँ, चालू हो गया था। मैं आज पहला कॉन्सेप्चुअल क्लास ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो रहा है। ओके, ऑल राइट। द फर्स्ट थिंग विच आई नीड टू टेल यू इज दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हुआ था। 200 साल पहले सर? नहीं, 200 नहीं हुआ, 150, एग्जैक्टली 150 साल पहले, एग्जैक्टली 150 साल पहले लगभग अपना एक एक्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो अभी भी जीवित है या मर गया? जीवित है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ ट्रिविया और फैक्ट्स बोलता हूं, उसके बाद कनेक्ट करके कंसेप्चुअल स्टडी में भी जाएंगे आज। फर्स्ट ट्रिविया इज, इट इज डिराइव्ड, जो लिखा दिया था, फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक है, कॉपी करते रहना तुम लोग। इंग्लिश कॉमन लॉ। second trivia is इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। जब बनाया गया था, like most of the other acts, was not made applicable to the state of Jammu and Kashmir। यानी कि शुरुआत में जब भी पढ़ाई करोगे, लास्ट साल के पहले तक जो लोग पढ़ाई किए, लास्ट साल का पहले तक, 2019 का पहले तक, यानी कि 2019 के शुरू तक या 18 तक जो लोग पढ़ाई किए, उन लोग को पता था, देश में, मेरे को भी वही पता था, मैं भी वही पढ़ाता था। मेरा पास्ट का कोई 2 साल पहले का वीडियो देखेगा तो वही सोचेगा कि मैं जब पढ़ाता था, मैं बोलता था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा देश भर में लागू है, बट जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के। और मैं बोला ये बात सच था या सही था कब तक? टिल 2018, नॉट इन 2019। 2019 अगस्त में ये रिपील कर दिया गया, याद है? आर्टिकल 370 को हटाया गया, याद है? बहुत बड़ा देश में अपलोड हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370, 370 को हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से। 370 आर्टिकल वाज एम्पावरिंग जम्मू एंड कश्मीर autonomous status in making certain laws। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट गवर्नमेंट was empowered to make its own law, its own law, अपना खुद का कानून बनाने के लिए उसको एम्पावर किया गया। बोला जो भी देश में कानून चलेगा वो आपके लिए लागू नहीं होगा, आपके लिए आपका लैंड का कानून स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खुद बनाओ। ये एमओयू हुआ था when Jammu and Kashmir state became a state of India and they were integrated with India. While integrating the MOU, the memorandum of understanding was there between the state government of Jammu and Kashmir and Indian central government. Or Article 370 in the Constitution provided this safeguard to the people of Jammu and Kashmir and to the state of Jammu and Kashmir। जिस वजह से कोई भी एक्ट पहले जो हम लोग पढ़ते थे, आर्टिकल 370 हटने से पहले लगातार लगभग सारा एक्ट जो कमर्शियल लॉ में है, जैसे कि
पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो सिलेबस में भी है सीए फाउंडेशन में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीनों का तीनों वाज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड पोस्ट रिपील ऑफ आर्टिकल 370 now these acts are applicable to the whole of India, not excepting anything. Clear है? So अभी लिख सकते हो applies to the whole of India. पहले अगर पढ़ा था 2 साल तो क्या लिखा था? Applies to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. तो कंफ्यूजन दूर कर दिया और हिस्ट्री भी बता दिया. वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री दिस वाज. ओके सर. सर 3 नंबर 3 अभी मैं कंसेप्चुअली शुरू करूंगा. कंसेप्चुअली तो नंबर 3 लिख के फायदा नहीं है, तो 2 ही ट्रिविया में दिया. नंबर 3 मतलब बोलने के लिए 2 चीज डिस्कस हुआ, तो तीसरा अभी नेक्स्ट जो डिस्कस होगा दैट इज कंसेप्चुअल. दैट इज कंसेप्चुअल स्टडी. ओके सर. यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स. हाँ, कंसेप्चुअल ना लिख के बेसिक कॉन्सेप्ट लिखना ही बेहतर है. फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का कानून यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. नाउ कॉन्ट्रैक्ट है क्या सर? मैं क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के लिए रियल लाइफ फील लाने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं हमेशा स्टूडेंट जो अटेंड करते हैं, एक भी स्टूडेंट अगर अटेंड करे तो उसको भी बोलता हूं कि आंसर करो. नाउ would you like to answer people who are attending right now live online में? Okay, would you like to answer? Please raise your hand. I'll give you a chance by unmuting you if you like to answer what is a contract, or you can chat also. Yeah, great. Contract is a mutual agreement, okay, between two parties. Okay, that's correct. Anyone else? Guys, let's be interactive. Let's say if we whatever you feel you can express. There's no bar. Abhishek, will you like to answer? Okay, all right. Now my answer. Contract Abhigyan, I guess, has answered. Contract, he has answered, is a mutual agreement between two parties. Okay, it is to certain extent correct. But not the perfect definition. Okay, right? So not the perfect definition. So what is the perfect definition? Let us try and understand. हम लोग सोचते हैं और समझते हैं कि परफेक्ट डेफिनेशन इसमें क्या है. एक बार आराम से सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है. अच्छा बोलो, आज दो दोस्त एक दूसरे को प्रॉमिस किया, वादा किया कि आज शाम को मिलेगा. किस लिए मिलेगा सर? अड्डा मारता है ना कलकत्ता में, क्या कल्चर है अड्डा. अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग हो के लोग अड्डा मार रहे, मास्क पहन के 6 फीट का दूरी रख के अड्डा मार. ठीक है, ओके. नाउ ये जो मैं बोला, व्हाट डिड आई से? मैं बोला दो दोस्त प्लान किया, दे विल मीट अप एंड चैट. ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है. हाँ सर, बिल्कुल म्यूचुअल एग्रीमेंट तो है ही. आपसी में वो लोग सलाह करके ये तय किया. ठीक है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट तो 100% का है. बट मेरा क्वेश्चन दूसरा है. अगर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज है, जो कि आंसर में दिया गया है, मतलब बुक में नहीं, आप लोग, तो फिर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है दो दोस्तों के बीच? दैट इज माय क्वेश्चन. प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, thinking about it once again. Like I said, one of you said that contract is a mutual agreement between two parties, and I asked you by giving an example, दो दोस्त म्यूचुअली एग्री किया शाम को मिलके अड्डा मारेगा, क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है?
द आंसर कोई चैट में लिखा है, मैं देखता हूँ आंसर क्या लिखा गया है। आंसर लिखा, इट needs to be validated by the government, and also Abhishek said it is a legal mutual agreement between two parties. Very good. Abhigyan ne jo likha, it needs to be validated by the government, not actually, but your thought is there. You mean to say it needs to be legalized, right? Okay, so let me explain to you. This is not a contract. If you ask the question whether the contract between two friends to meet up and chat is a contract, sorry, whether the agreement between two friends to meet up and chat and is a contract, the answer to that is no, it is not a contract. It is merely an agreement. It is merely an agreement, and from there only we get the definition of this word contract. Contract in Indian Contract Act under section 2 subsection H or 2H is defined as an agreement which is enforceable by law. An agreement which is enforceable by law. यानी कि देखो, एग्रीमेंट तो सभी है, कॉन्ट्रैक्ट भी एग्रीमेंट है, और जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो भी एग्रीमेंट है। बट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैसा एग्रीमेंट होना पड़ेगा? जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो या ना हो, जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। यानी कि आज अगर कुछ ऐसा एग्रीमेंट होता है जैसे दो दोस्तों के बीच हुआ, जहां पे एक दूसरे को वो लोग प्रॉमिस किया या तय किया वो लोग मिलके कि वो लोग शाम को मिलेगा, तो ये शाम को मिलने वाला एग्रीमेंट इज अ मियर एग्रीमेंट. इट कैन नॉट बी, यू नो, it cannot be said to be a contract. Why? Because it is not enforceable by law. अगर एक दोस्त तब मिल नहीं पाए शाम को, क्या पुलिस उसको पकड़ के लेके जाएगा? नहीं, कभी नहीं. सो एग्रीमेंट सिर्फ और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ में जमीन आसमान का तरफ है, फर्क है. और जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वही एग्रीमेंट को अपने क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन हो गया एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. क्लियर है? सो इसके साथ साथ एक इंटरप्रिटेशन लाइन भी आता है. वी कैन इंटरप्रेट फर्दर. द इंटरप्रिटेशन इज दिस वे. तुम लोग बताओ मेरे को, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स? All contracts are agreements or all agreements are contracts? Which one is true? Tell me boys, which one is true? All agreements, सारा agreements क्या contract है या सारा contract agreement है? Tell me. Waiting for your answer. Once again, all agreements are contracts or all contracts are agreements? I'm asking this question to both of you. You can answer. Tell me. All contracts are agreements. Yes, correct, absolutely correct answer. The answer is Abhishek has answered. All contracts are agreements. यानी कि दोनों ही आंसर किए. थैंक यू. तो दोनों ही सही हो. All contracts are agreements. Very good, both of you answered. So we can write this line. You can also copy it. All contracts are agreements. I'm writing on the board. Are agreements, but all agreements are not contract. Okay, so this is the line which you need to understand. Okay sir, what is section? थोड़ा वो बताइए. देखो, एक्ट का स्ट्रक्चर में बोला था बहुत सारा चैप्टर्स है, और बहुत सारा चैप्टर्स में मैं ये भी बोला था कि जो बहुत सारा चैप्टर्स के अंदर बहुत सारा क्या है, बहुत सारा चैप्टर्स के अंदर बहुत सारा सेक्शंस है. तो सेक्शंस आर इनहेरेंट पार्ट ऑफ द एक्ट. सर सेक्शन नंबर याद रखना है या नहीं, ये बहुत लोग का सवाल होता है पहला क्लास ऑफ लॉ में. तो मैं बता दूं, सेक्शन नंबर एफर्टफुली याद मत रखना.
एफर्टफुली याद रखने जाओगे तो कितना सेक्शन है याद करने लायक, सोचो कौन कौन सा याद कर लोगे? नहीं। तो कुछ लैंडमार्क, कुछ बेंचमार्क, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस नंबर याद रख लो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन इज टू एज। ये तुम आखिरी दिन तक नहीं भूलने वाले हो, मैं जैसे पढ़ाऊंगा पूरा याद रहेगा, ठीक है। बट हर सेक्शन को रटने मत जाओ, हर सेक्शन नंबर को याद रखने मत जाओ। हर सेक्शन नंबर को याद रखने जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, सिंपल एज दैट। एंड सर आपको याद है, मेरे को थोड़ा बहुत लगभग याद हो गया क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, एक स्टूडेंट तो ऑफ कोर्स कहां से उतना बार पढ़ाएगा। सो द आइडिया इज स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव से सोच के बोल लो, डोंट वरी। बट सर एग्जाम में लिखे तो ना लिखे तो मार्क्स कटेगा, मार्क्स मिलेगा, ये पर्सपेक्टिव बता दीजिए। जरूर, एग्जाम में मार्क्स अलग से काटेगा नहीं अगर तुम मेंशन नहीं करोगे सेक्शन नंबर, अलग से काटेगा नहीं। बट हाँ, अगर तुम तुम्हारा आंसर में परफेक्शन के साथ सेक्शन नंबर भी लिख दिए तो इंप्रेशन जम जाएगा, इंप्रेशन जम जाएगा। और एक चीज है, गलत सेक्शन मत लिखना, गलत सेक्शन लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, ना याद रखना इज बेटर मैथमेटिकली, बिकॉज ना याद रखने से, स्ट्रेस देके ना याद रखने से, एफर्टलेसली याद है तो बात अलग है, वही मैं बोल रहा हूँ, एफर्टलेसली मैं याद दिला दूंगा। बट एफर्टफुली अगर याद रख रहे हो स्ट्रेस देके और गलती से एग्जाम में जाके तुम गलत आंसर लिख दिए, गलत सेक्शन लिख दिए, तो फिर मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये बात। ओके सर, क्लियर है? अब ध्यान से ये कॉपी करने के बाद अभी दूसरा लैंग्वेज मैं पूछने वाला हूँ। दूसरा लैंग्वेज कुछ ये है कि व्हाट इज एग्रीमेंट, ये है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, पहला सवाल। तो दूसरा सवाल बनता है व्हाट इज एग्रीमेंट देन? कैन एनीवन आंसर? What is an agreement? First question was what is a contract, and second question becomes what is an agreement. So what is an agreement? Now tell me, guys. Anyone? Anyone can raise your hand. You can, we can unmute you, and you can, like real proper class, you can answer, or you can chat and type whatever you like. Agreement? Any idea? Okay. Okay. Fine. I'm going ahead. Agreement फिर क्या है सर? अच्छा बताओ, ये दो दोस्त जो लोग तय किए शाम को मिलने का अड्डा मारने के लिए, अभी मेरा स्टोरी में एग्जाम्पल में मैं जो दिया, ये दोनों दोस्त का जो एक दूसरे को प्रॉमिस किया, ये प्रॉमिस क्या था? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट था और या सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट ही था? सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट था सर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इट वॉज ओनली एंड ओनली एन एग्रीमेंट एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो व्हाट आई मीन टू से इज, व्हाट आई मीन टू से इज agreement is, agreement is a promise, agreement is a promise made। मम्मी ने नाश्ता में मैगी बनाने का प्रॉमिस किया, लेट्स से मैगी एंड एग्स बनाने का प्रॉमिस किया तुमको, एंड ये तुम जैसे ही प्रॉमिस स्वीकार कर लिए, तुमने बोल दिए कि हाँ मुझे यही चाहिए। मम्मी ने पूछा क्या तुमको ये चाहिए, तुमने बोला हाँ मेरे को यही चाहिए, तो ये बन गया प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस एक एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है फैमिली के अंदर, हाँ है ना? बट यही प्रॉमिस, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं। मम्मी ने जो ब्रेकफास्ट के लिए प्रॉमिस किया, इट कैन नेवर बी मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज यहाँ पे एग्रीमेंट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, इंटेंशन ही नहीं है लीगल मतलब रिलेशनशिप क्रिएट करने का, ठीक है, और ये मियरली एक एग्रीमेंट है। तो सर एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया? अच्छा, एग्रीमेंट समझाने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए मैं और एक और दो एग्जांपल लूंगा, जाके रियल लाइफ एग्जांपल से पूरा दिमाग खुल जाए और समझ पाओ। लेट्स से दो दोस्त है, तुम लोग बोलना, मेरे को आंसर देते रहना, इंटरैक्टिव रखना चैट पे। दो दोस्त है, टू फ्रेंड्स आर देयर। नाउ टू फ्रेंड्स, वन ऑफ देम has offered the other one कि 6 बजे कल क्रिकेट खेलने आ जाना मैदान में। दूसरे ने बोला हाँ आ जाऊंगा।
तो एक ने बोला क्या तू खेलने आएगा सुबह 6 बजे, दूसरे ने बोला हाँ आऊंगा, तो ये एग्रीमेंट हो गया ना म्यूचुअल दो पार्टी के बीच। हाँ, अब सुबह 6 बजे नेक्स्ट दिन एक पहुंच गया, दूसरा पहुंच नहीं पाया, दूसरा जो पहुंचा नहीं वो सो रहा था घर में और वो आया ही नहीं, तो जो एक बंदा गया वो अकेला ही बैटिंग किया, अकेला ही बॉलिंग किया। सर कैसे सर, अकेला बैटिंग बॉलिंग दोनों कैसे करेगा? अकेला ही किया, उछाला बॉल को और मारा, उछाला बॉल को और मारा। ठीक है, बॉलिंग भी हो गया, बैटिंग भी हो गया। तो सोचो, तो सोचो अगर वो अकेला गया और उसका दोस्त उसका साथ नहीं दिया, तो क्या ये जो बंदा अकेला गया, क्या वो पुलिस स्टेशन जाके जो बंदा नहीं आया उसके खिलाफ रिपोर्ट करेगा और एक्शन, लीगल एक्शन ले पाएगा? द आंसर इज व्हाट, यस और नो? द आंसर इज अ बिग नो। द आंसर इज अ बिग नो। वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये क्या था? एग्रीमेंट। So all agreements are not contracts. Only those agreements which are enforceable by law are contracts. तो सर पूरा क्लियर कर रहे हो? हाँ पूरा क्लियर करूंगा, ऐसे 5-5 एग्जांपल लेके एक एक चीज समझाऊंगा तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ओके सर। सर तो यही एग्जांपल का दूसरा बोले थे। हाँ दूसरा भी बोल रहा हूँ, सुन लो। दूसरा कुछ ऐसा है, अभी जब ये एक बंदा क्रिकेट खेलने गया, दूसरा वाला आया नहीं, तो एक बहुत मतलब एक खुद खेल रहे ना, तो क्रिकेट जहाँ पे खेलने गया वहां पे बहुत सारा क्रिकेट क्लब है, वहां पे एक क्लब का कोच उसको देख लिया कि अकेला क्रिकेट खेल रहा है, तो कोच बहुत खुश हो गया उसका डेडिकेशन देख के, और कोच उसको बोला कि भाई तुम ज्वाइन करो अपना क्लब, तुमको साइन कर लूंगा मैं। तो द कोच ऑफ अ क्रिकेट क्लब, लेट्स से साइंस हिम, let's say signs the player, and now the friend who has been signed as a player by the cricket club has signed and agreed with the coach that वो सुबह हर रोज 6 बजे पहुंच जाएगा मैदान में। अब अगर कोई एक दिन वो नहीं पहुंचता है, अगर कोई एक दिन अभी क्लब में जो वादा किया वो पैसा लेके, कोई अगर एक दिन वो नहीं पहुंच पाया, can it be said that he has breached the contract? Can he be legally answerable? The answer is yes. अभी yes answer होगा, correct? Because it is clear that अभी वो क्रिकेट क्लब में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये लीगली एनफोर्सेबल है, उसको पैसा मिलेगा, उसको आंसर करना पड़ेगा, एंड this makes the agreement between him and the club legally enforceable, and hence it is a contract and not merely an agreement. It is an agreement which is enforceable by law. So the definition of contract as per Indian Contract Act section 2H is a contract is an agreement which is enforceable by law. A contract is an agreement which is enforceable by law. अच्छा मैं जैसे बोल रहा हूँ कि which is enforceable by law, तो तुम लोग भी ये जो साइन कर रहा हूँ, मतलब इसका मतलब तुम लोग भी मुंह खोल के बोलो, ठीक है? मेरे को सुनाई नहीं देगा बट घर में बोलो। ऐसे करके पढ़ाई करोगे तो क्लास बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा, बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा। ओके, डोंट वरी। ऑल राइट, नाउ सो एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है सर, वो तो बताइए। हाँ अभी वो बताऊंगा, वो बोलने से पहले और लास्ट एक एग्जांपल लूंगा, उसके बाद बोलूंगा, तो दिमाग एग्जांपल सुन के ही पूरा एकदम मतलब याद रखेगा सारा कॉन्सेप्ट। ओके, दूसरा एग्जांपल ध्यान देना। दूसरा एग्जांपल कुछ ऐसा है कि अगर अगर बात करो कि क्या नाम है एग्रीमेंट का, तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 2E कहता है, 2E फॉर एलिफेंट, 2E says that, just a moment, 2E says that every promise, एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस ही तो बोला था, वादा। every promise or every set of promises that forms consideration for each other, that forms consideration for each other,
यानी कि एग्रीमेंट का डेफिनेशन हो गया हर वादा या हर सेट ऑफ वादा, मैंने एक वादा किया, आपने एक वादा किया, तो सेट ऑफ वादा, सेट ऑफ प्रोमिसेस दैट फॉर्म्स कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए, मैं वादा किया क्योंकि मेरे को वादा मिलेगा, आपने वादा किया क्योंकि आपको बदले में वादा मिलेगा, तो हर एक सेट ऑफ वादा जो एक दूसरे का कंसीडरेशन है, ठीक है। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज agreement. Now let us come to a small funda. The funda is what is an agreement को थोड़ा सा इक्वेट कर रहा हूं, मैथ्स पढ़ाने लायक कर दे रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया एंड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर इक्वेशन में लिखेंगे तो ऐसे दिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट, कॉपी करते रहना, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ एंड agreement is equal to promise, है ना। अब what is promise, अभी लास्ट आखिरी चीज कंसेप्चुअल लर्निंग में जो सीखना चाहिए, जो आज सीखेंगे, वो है प्रॉमिस क्या है। फिर व्हाट इज प्रॉमिस, हम लोग सीखे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, फिर एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस क्या है, अभी वो भी बात कर लेते हैं। प्रॉमिस कब होता है, प्रॉमिस का और एक नाम है एक्सेप्टेंस। सो वी कॉल इट एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इक्वेशन में ये बोलते हैं, वर्ड्स में क्या बोलते हैं मैं सिखाऊंगा। वर्ड्स में बोला जाता है एन ऑफर when accepted or once accepted becomes a promise, becomes a promise। बोलो, आज अगर किसी ने कुछ वादा किया, मैं दूसरा एग्जांपल जो देने वाला था अभी दे दूंगा, दूसरा एग्जांपल अभी दे दूंगा, प्रॉमिस भी समझ में आ जाएगा, दूसरा एग्जांपल भी याद रह जाएगा। आज अगर मम्मी ने वादा किया घर में नाश्ता बनाने का, ये वादा तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया प्रॉमिस। बट ये सोशल या फैमिलियर प्रॉमिस है, इससे कोई लीगल ऑब्लिगेशन खड़ा नहीं होता है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और सिर्फ एक प्रॉमिस है, यानी कि सिर्फ एक एग्रीमेंट है। यहां तक क्लियर है ना? ये एग्जांपल तो सर पहले ही दिए थे, हाँ इसको अभी बढ़ाएंगे, जैसे खेलने वाला एग्जांपल भी बढ़ाया। अभी अगर लेट्स से आप लोग एक होटल में रह रहे हो, यू आर स्टेइंग एट अ होटल, यू हैव बुक्ड अ होटल एंड होटल में हमेशा 100 में से 90 जगह में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है इंक्लूडेड इन द रूम चार्जेस। सो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में लेट्स से तुमको वादा किया गया है, द होटल हैज प्रॉमिस्ड दैट दे विल सर्व यू सम कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट ब्रैकेट में लिखा है, होता है ना ऐसा। तो सुबह जैसे ही हुआ ब्रेकफास्ट टाइम, तुम नीचे रिसेप्शन में फोन किए 9 दबा के और बोले ब्रेकफास्ट भेजिए, तो वो क्या किया, दरवाजे में तुम्हारा रूम में नॉक हुआ, रूम सर्विस आया, रूम सर्विस तुमको बोला लीजिए ब्रेकफास्ट, बोल के एक पैकेट मूढ़ी दे के चला गया, मूढ़ी पफ्ड राइस। तो मेरे को बताओ क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है सर। एग्रीमेंट या प्रॉमिस वो लोग किया था कुछ और किया कुछ। इंग्लिश ब्रेकफास्ट का प्रॉमिस हुआ था, मूढ़ी थोड़ी ना इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, कौन सा जगह का है, नहीं। सो द आइडिया इज सर, ये साफ साफ ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें लीगल ऑब्लिगेशन था किसका, होटल का, टू फुलफिल देयर प्रॉमिस ऑफ गिविंग कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एंड इफ दे फेल टू डू सो इट्स अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोथ। क्लियर है? तो मैं ये दूसरा एग्जांपल क्या दिया, मम्मी ने ब्रेकफास्ट अगर प्रॉमिस किया तो दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज नो लीगल obligation which is arising. But same thing if the hotel, if a hotel promises or hotel says that they will provide you English breakfast and they don't, it is a contract. It is a contract because there is enforceability by law.
Now with that you also learn what promise. प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस वो होता है जो वादा तुम किया और वादा एक्सेप्ट कर लिया कोई. सो एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. है ना? तो ये है फंडा सर. तो ये बताइए कि अल्टीमेटली प्रॉमिस का डेफिनेशन हो गया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. तो एग्रीमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं? एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. है ना सर? मैथ्स की तरह बन गया लॉ. हाँ, मैथ्स की तरह बन गया. तो देखो मैं स्टार्ट किया बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास आज क्या बोल के कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है एग्रीमेंट्स व्हिच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. बोलते रहो मेरे साथ, ठीक है? घर में कोई सुनेगा तो क्या लगेगा? पढ़ रहे हो पागल की तरह. तो बढ़िया इंप्रेशन बनेगा, ठीक है? ओके. नाउ all contracts are agreements but all agreements are not contracts. And lastly, what is an agreement? Section 2E defines it's a promise or every set of promises which forms consideration for each other. एंड लास्टली कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन फिर क्या होगा? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. एंड एग्रीमेंट का क्या होगा? एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस. प्रॉमिस का क्या है? प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. एंड ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. इज इट क्लियर? So this is what we have done. I wanted to show you the book. बुक दिखाना चाहता हूँ. तो बुक दिखा के और थोड़ा समय रहेगा तो पढ़ेंगे, ठीक है? पहले बुक दिखा देता हूँ. बुक का जो बोला एडमिनिस्ट्रेटिव. तो देखो बुक तुम लोग का सीए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे मिलेगा. सीए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में बुक मिलेगा. यहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट का एड्रेस है icai.org. यहाँ पे स्टूडेंट्स टैब है, मेंबर्स टैब है. मेंबर्स कौन है? सीए लोग. सर आप मेंबर हो? हाँ. मेंबरशिप नंबर है? हाँ. आई एम अ सीनियर मेंबर एफसीए, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है? सीनियर मोस्ट मेंबर्स का वही होता है. आई एम सॉरी, just a moment, excuse me. Yeah, so members tab and students tab दोनों है. स्टूडेंट्स टैब में बुक्स वगैरह मिलेगा. कहाँ पे सर? बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल. देखो BOS नॉलेज पोर्टल में जो रेड बनाया हुआ है इसमें क्लिक किया तो ये पाथ पूरा याद रखना. स्टूडेंट्स टैब में BOS नॉलेज पोर्टल मैं लिख दूंगा. फिर फाउंडेशन कोर्स, फिर सिलेबस. सिलेबस में जो पेपर अभी पढ़ रहे हैं पेपर 2 बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग BL एंड BCR. क्लिक दैट. सी स्टडी मटेरियल मिल गया तुम्हारा गोल्ड माइन. तो सारा स्टडी मटेरियल जो सीए इंस्टीट्यूट हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा वो सारा सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइडेड है, ठीक है? ओके. सो सर ये तो सेक्शन बी आप क्लिक कर लिए. सेक्शन बी का क्लास आज नहीं है, सेक्शन ए लॉ का क्लास है. तो स्टडी ओ नहीं सर, आप चूज ही किए पहले. हाँ, सेक्शन ए बिजनेस लॉ स्टडी मटेरियल एंड देन वी कैन सी क्या है. स्टडी मटेरियल में ऑफ कोर्स वी हैव स्टार्टेड विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखो 6 यूनिट्स है. देयर आर 5 चैप्टर्स. 5 चैप्टर्स एज इन 5 लॉ में 5 एक्ट्स है. मैं जो बोला था 5 चैप्टर्स बोल दिया एक एक एक्ट को. और एक चैप्टर के अंदर कितना यूनिट है? 2-3 है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द हाईएस्ट एंड द बिगेस्ट. उसमें 6 यूनिट, ठीक है? यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट किए. यूनिट 1 का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. यूनिट 1 इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और उसी में पहला चीज मैं तुम लोग को पढ़ाया द कॉन्सेप्ट. तो देखो कॉन्ट्रैक्ट फिर एलिमेंट्स ये करके पूरा ये चैप्टर वैसे खत्म होगा जैसे दिया हुआ है. बट खत्म होने से पहले इंट्रोडक्शन वो लोग भी दिया. और व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो मैं शुरू किया वही किया. देखो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ दिखाई दे रहा है ना? तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ कि घर में अकेला जाके जब पढ़ोगे तब समझ में आए. तो देखो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H वो भी लिखा हुआ है. और फिर ये भी लिखा हुआ है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ डेफिनेशन. फिर 2 चीज बोला. 2 एसेंशियल एलिमेंट्स है. एग्रीमेंट होना पड़ेगा एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ होना पड़ेगा. फिर एग्रीमेंट का डेफिनेशन हम लोग कर लिए. एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? 2E. और देखो वही है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस which forms consideration for each other. And lastly, if you look at what we have done last thing which we have done was this.
Section 2B, definition of proposal. When a person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. मैं ये बोला, proposal when one accepted, offer when accepted becomes promise. ठीक है ना, promise का डेफिनेशन मैं दिया, और ये बोल के मैं एक और चीज अभी शुरू करूंगा, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मीनिंग। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मीनिंग बोल के आज का क्लास खत्म करेंगे। तो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट तक अपना हो जाएगा, आप लोग घर में यह पढ़ के आओगे, ठीक है। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस तक पढ़ के आओगे, ठीक है। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से अगला हफ्ता नेक्स्ट क्लास शुरू होगा। क्लियर है? तो मैं कहां तक पढ़ाऊंगा, मैं अभी एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ बोलूंगा, एंड फिर उसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस कराऊंगा एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा सर, डिफरेंस पहले करा दीजिए, फिर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ बोलिए। बोर्ड में डिफरेंस बुक में खुला हुआ है, पहले दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा बोलो, ना देख के पहले कोशिश करते हैं दिमाग में, फिर बुक लगाएंगे। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में ना देख के अगर बात किया जाए, ना देख के कैसे सर, ना देख के ऐसे, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसेप्चुअली बात किया जाए, क्या फर्क है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ये डिफरेंट है। हाँ सर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट्स नीड नॉट बी legally enforceable, yes or no? Need not be, but contracts need to be legally enforceable. दोनों हो गया ना? हाँ सर, दोनों डिफरेंस दिख रहे हैं। all agreements are not contracts, all contracts are agreements, and agreements need not be legally enforceable, but contracts has to be legally enforceable. yes sir, बिल्कुल। तो ये दोनों डिफरेंस क्या लिखा वो लोग? हाँ ये देखो, ये स्कोप में वही लिख दिया, स्कोप में वही लिख दिया, इट्स वाइडर इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट एंड सॉरी, हाँ यही, इट इज यूज्ड इन अ नैरो सेंस। तो स्कोप एक का वाइड है और कॉन्ट्रैक्ट का नैरो है। ऑफ कोर्स एग्रीमेंट तो सभी है, एंड नेचर में देखो, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ये दो डिफरेंस अपने बोले। और डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन या मीनिंग, पहला डिफरेंस, एवरी दोनों का डेफिनेशन अलग है, ठीक है ना। और देखो लीगल ऑब्लिगेशन, थर्ड डिफरेंस भी अपने को पता है, इट मे और मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, हु एग्रीमेंट, बट कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। क्लियर है? तो ये डिफरेंस भी हो गया। ये डिफरेंस तक आप लोग का होमवर्क है, अच्छे से पढ़ के आना। मैं अभी लीगल ऑब्लिगेशन समझाऊंगा, फिर खत्म करेंगे क्लास। ओके तो जल्दी से देखो, अपने जो किए एग्रीमेंट, सॉरी, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन या इक्वेशन यहाँ पे लिखे, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। यहाँ पे एग्रीमेंट क्या है पता चल गया, अभी पता क्या करना पड़ेगा, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है, ये बोल के आज का क्लास अपने खत्म करेंगे। पूरा मैं ऊपर से रिवीजन भी करा दिया, मैं हर क्लास शुरू करूंगा रिवाइज करा के, तो थ्योरी सब्जेक्ट क्लास में पूरा एकदम जब्त हो जाएगा। ओके चलो आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट चीज आज का, वो है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ समझते हैं, या लीगल ऑब्लिगेशन टर्म समझते हैं। ओके ऑब्लिगेशन, यू हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म, ऑफ कोर्स सर ऑब्लिगेशन सब लोग सुने हैं। obligation, we have heard of this term called obligation. Now obligations could be of manifold types. Obligations could be of manifold types: social obligation, moral obligation and legal obligation. social, moral, legal. सर ऑब्लिगेशन बहुत तरह का हो सकता है, हाँ सोशल हो सकता है, मॉरल हो सकता है, लीगल हो सकता है। ओके तो सर अपने क्या चीज लेके कंसर्न है, और अपने पढ़ाई में कौन सा ऑब्लिगेशन लगेगा? लीगल, लीगल ओनली। law has got nothing to do with, of course law is made in such a way that social and moral norms are maintained, but strictly speaking law जो है वो हमेशा जो मॉरल और सोशल है वो नहीं होगा। जैसे बोलो, आज अगर मैं किसी को देख के हाय नहीं बोलता हूँ, someone greeted me hi, I said hi, अगर मैं हाय नहीं बोलता हूं तो आई एम साउंडिंग रूड, बट कैन दैट पर्सन गो एंड टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट मी? नो। सोशल ऑब्लिगेशन ब्रीच्ड, नो लीगल ऑब्लिगेशन ब्रीच्ड। ठीक है,
तो यही मैं बोल रहा हूँ, सोशल मॉरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन आर सेपरेट थिंग्स ऑल टुगेदर. नाउ सोशल ऑब्लिगेशन का एग्जांपल क्या है, मैं बोला हाय. मॉरल ऑब्लिगेशन का एग्जांपल क्या है, लेट्स से मोरालिटी तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, हर एक जन का अलग अलग होता है. जैसे कि कोई बुजुर्ग खड़ा है, मेट्रो रेल में जा रहा हूँ, कोई बुजुर्ग खड़ा है तो बुजुर्ग को मैं बैठने दे दिया मेरा सीट. ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि मेरे को खड़ा होकर देना ही है ना. तो मॉरल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन आर सेपरेट. नाउ आई टेल यू, when will a, or rather when a contract is forged, when a contract is made, which obligation is created due to enforceability by law? Tell me, when a contract is hatched, when a contract is made, कौन सा obligation create होता है, social, moral या legal? Legal obligation. So enforceability by law, very good, very good guys. Enforceability by law is, enforceability by law is created due to legal obligation. Legal obligation. Okay. Now this is the funda, or enforceability by law creates legal obligation. So that calls for a close. We have what we have done. Let us quickly see. मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लेके शुरू किया. 3 डेफिनेशन हम लोग रब्त किए एकदम. नंबर 1 है सेक्शन 2H, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है क्या? एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. फिर एग्रीमेंट्स का डेफिनेशन सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस विच फॉर्म्स कंसीडरेशन फॉर ईच अदर. एंड लास्टली सेक्शन 2B, प्रॉमिस. प्रॉमिस का मैं क्या बोला? प्रॉमिस का बोला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वेशन, एंड एन ऑफर व्हेन और वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. एंड मैं लास्टली एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब समझाया. मैं बुक में ले गया और बुक का होमवर्क है पेज यहां तक, और बुक कैसे डाउनलोड करना है बोल दिया. ठीक है. नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. नाउ बिफोर रैपिंग अप, I will request you guys, if you guys have any query, if you guys have any query or anything at all to discuss, my calling number, direct calling number I am giving, you can, I am very friendly, so you can ask me anything under the sun. This is my direct calling number, 8910635350. Okay. And my WhatsApp number also I'm providing. That is also calling number, WhatsApp number, but वहाँ पे phone कभी कभार नहीं लगता है. Okay, so these 2 numbers you can use whenever you need to get in touch with me. Okay, you can WhatsApp me on this and call me on this. I am reachable 24/7, and you can, कोई भी पढ़ाई लेके इशू, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन लेके इशू भी, you can take it up with me, although we have our admin head. So that is it. Thank you for attending today's class. Please do let me know. I am just recapping one small thing. I have already said कि रूटीन क्या है आप लोग का इस हफ्ते का, कि फ्राइडे में मैथ्स का जो क्लास है वो मैथ्स का नेक्स्ट क्लास है आप लोग का. सैटरडे का अकाउंट्स क्लास मेरे साथ ही है. बीसीआर का कल कोई क्लास नहीं है. बीसीआर मैं सेकंड वीक से हमेशा स्टार्ट करता हूँ, लॉ के बाद वाला वीक से, लॉ को जाके इम्पेटस मिले. संडे इको एनबीसी के दोनों है, इको सर का. ठीक है. सो दिस is the week long. Next week also we will have one class per subject, and from the subsequent week to next week we will have full fledged classes. ठीक है. initial weeks में admission होगा, कुछ लोगों को miss होगा, that's why. Thank you so much once again for attending today's classes. Look forward to see you all on Saturday in my class, and before that you have a maths class.